Hello, good evening, friends. Namaskar. Very warm welcome to Nifty and Indian equity market discussion with SD. I'm SD Shananda Das. I'm a multi asset trading and investment specialist. Today, we are going to take a look at the Nifty and the Indian equity market situation. Nifty 50, small cap, mid cap, Nifty 500, and also a quick look at the Nifty option market situation. Kindly note that for this today's discussion, either we will use the rainbow charts or the line chart. I'm not going to use any other type of charts. First, I will take a look at the Indian market situation, and then I'll be ready to take queries from you all. This will be approximately a 1 hour session. So once again, very warm welcome to each and every one of you. Let me open up the TradingView chart. What I'm looking at is basically Nifty 50 chart in the weekly. And in the weekly chart, from the line chart, we can easily understand that Nifty is in a bullish market or the bull market, as the Dow structure is clearly higher high and higher low. That means overall the situation remains positive for equity investments. The most important thing in the market, I believe, is the risk. I'm in that group of investors or traders who believe that risk cannot be fully measured even before taking a trade or after the trade is done, even in profit. बट वॉट एवर पार्ट दैट कैन बी मेजर्ड, जितना भी मेजर किया जा सकता है, आई डू इट वाया माई रिस्क मास्टर. So this is a special indicator that looks at the risk of the equity market overall. I don't need the line chart to do this analysis, but I'll keep it for your reference. This is the risk master, and I can see the overall on the right side, the global equity risk master, that shows the risk level on equity as an asset class. And compared to previous reading, risk is relatively on the high side, thoda बढ़ चुका है risk. It means some of the equity market can face some drawdown, like US equity market, Europe, they are facing some drawdowns. And we can take a look at the year-to-date performance, and some of they have given up some of the gains जो उनको मिला था. The lower meter, India Risk Master, looks at risk towards the Indian equity market. थोड़ा elevated है, but the readings are much better than the previous. ये मेरा regular काम है. I look at this every day and every week to understand the risk level. एक बार weekly chart में measurement complete हो जाए, then I take a look at the daily chart, which is more short-term swing charts. Weekly is more long-term. So here it is much safer. Previously ये पूरा लाल था, means it was full red, the global equity risk master. So US equity में जो drawdown face हुआ, once again हम लोग recovery expect कर सकते हैं. On the right hand side, Indian drawdown risk is rising. That is concerning. But 5 में से 3 factors are still safe. And lower smart money sentiment मतलब big player का sentiment. Big players में थोड़ा risk aversion दिख रहा है, because we can never predict what Donald Trump will do. Currently he is saying we are close to an agreement, and tomorrow he may change his mind. And from my experience with Donald Trump, because I have been a very few of the people
that in 2016 called that Trump is going to win. So I have been looking at Trump almost from 2015, and I can say we can hate him, we can love him, but he is one of the rare politicians that follows through his promise. And he has also promised that he will bring IT jobs in the US. He has promised pharma price going down, pharmaceutical sector के ऊपर. So I don't think his assault on the Indian market, whether we get an agreement or not, is far from over. His presidency is at least more than 3 years remaining, and before US midterm election, at least another year remaining, little more than a year before US midterm election. So Donald Trump can still do a lot of damage to the certain sectors, especially the IT and the pharma sector. Now I'll take a look at more short-term swing, जो कि एकदम छोटा time frame है, suitable for trading. I can see a bump lower, but overall significantly safe in the short term. So no major risk currently can be seen in the overall equity market in the short run. However, I would like to highlight that we are in a recessionary cycle. Recessionary cycle इसका मतलब ये नहीं कि tomorrow the market crash will start. It means we are in a very late part of the business cycle. And at least if you look at कि last 100 साल का history, there have been at least 17 instances where the equity market has dropped at least 25% from their top. We have seen COVID-19 2020, we have seen 2008-9 mortgage bubble, we have seen 2001 internet or dot-com bubble burst. So basically, when we are in the late part of the cycle, excess builds up and market remains prone to और vulnerable हो जाता है एक बड़ा correction के लिए. So currently it is bullish, no doubt about. हम लोगों को investment करना चाहिए. But this risk we should keep in the back of the mind कि we are in the late part of the cycle. जो rise हम लोगों को 2020 से मिला, like all sectors going bullish, that may not happen in the latest Nifty rise. Many of the stocks are not gaining grounds, whereas new leaders, like some in the banks, are doing pretty well. एक बार मेरा risk measurement complete हो जाए, I go to once again in the weekly chart, and now I'll hide the line chart क्योंकि rainbow apply करने के लिए मुझे line chart की जरूरत नहीं है. But before I go there, I'll once again take you to this line chart. अगर आपको ज्यादा कुछ मालूम नहीं है about technical analysis, the first thing you should learn is the Dow structure. और लर्न करने का मतलब है उसको प्रैक्टिस करना, like the way I'm showing, जिस तरह दिखाया जा रहा है उस तरह आपको प्रैक्टिस करना, ताकि once आप चार्ट देख लो, sorry, I'll draw again. ताकि next time as you practice on hundreds of charts, आपको डायरेक्टली दिखने लगेंगे बहुत कुछ जो नॉर्मली नहीं दिखेगा unless you practice. So first practice the Dow structure, that is the most basic of technical analysis. And जो लोग बोलते हैं Dow structure late sign देता है, it is completely incorrect. If you look at the daily chart, आप similar picture देख सकते हो. If you're not familiar, let me do it. And when you are at the beginning level, draw every curve. हर curve को draw कीजिए. Sorry.
डबल क्लिक हो जा रहा है बार बार। हर टर्न को ड्रॉ कीजिए एंड आप समझ जाएंगे वी आर इन अ डाउ स्ट्रक्चर बुलिश। सो निफ्टी इज नॉट डेफिनेटली बियरिश। सो रिसेशन साइकिल में रहने का ये मतलब नहीं लेट्स गो एंड शॉर्ट निफ्टी इमीडिएटली। बट व्हेन द सेल ऑफ इज कमिंग, हम लोगों को होप के बेसिस पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। Even if I look at the 125 minutes chart, let me remove all the drawings first. आप क्लियरली समझ सकते हो वी डोंट हैव अ लोअर डाउ स्ट्रक्चर। सो आज के सेल ऑफ के बावजूद भी निफ्टी इज नॉट इन अ बियरिश फेज even in the short term. Now I'll go to the weekly and hide the line chart and apply the asset master. I had highlighted in my Sunday stock storm. This is my website. जो लोग फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हो, it is a free session, not chargeable session. You can go to simply my website shanundadas.com, click Sunday stock storm, and the link will be available here every time. Previous recordings are available in the YouTube. Some of them are not free, but the cost of watching is kept very, very low, around just 100 rupees. But I'll recommend that if you want to keep it free, try to join them live. All joining are free. Last time we discussed money management models part 2. This Sunday we will take money management models part 3. निफ्टी का चार्ट देखते हुए मैं आप लोगों को हाईलाइट किया था इन द संडे स्टॉक स्टॉर्म। आई एम लुकिंग एट द मंथली चार्ट और मैंने हाईलाइट किया था कि आई हैव नॉट सीन दिस बुलिश निफ्टी एटलीस्ट इन 1 ईयर। लास्ट अक्टूबर के बाद पहली बार एक फुल ग्रीन कैंडल आ रहा जो लास्ट 1 ईयर से मिसिंग था। So I will say Nifty is showing significant bullishness जो दिखा नहीं लास्ट 1 ईयर। सो अगर आप सही सेक्टर, सही स्टॉक्स में रहेंगे, you can expect quite a good gain. Let's get back to the weekly chart again. So from the weekly chart, it is clear that Nifty is significantly bullish. If I bring out the momentum indicator, sorry, ये जो मेरा सेटअप है, दिस इज अ 12 फैक्टर सेटअप। 7 फैक्टर ऊपर दिखता है एंड 5 ऑन द लोअर मोमेंटम। सो टोटल 7 + 5 12 एंड क्लियरली दिख रहा है 12 में से 11 फैक्टर इज बुलिश, ओनली 1 द मीडियम टर्म मोमेंटम थोड़ा बियरिश है। नाउ आई विल गो टू द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी via the same asset master. I'll adjust the chart. Significantly bullish. Majority of the sectors are rising with this Nifty up. नीचे का strength meter से दिख रहा है majority of the sectors are on the rise. Now let's and factor model से दिख रहा है कि 10 ऊपर में 7 out of 7 bullish and नीचे 3 out of 5 bullish, मतलब 10 out of 12 factor bullish, मतलब significantly bullish is Nifty. Now I'll go to more short-term chart, which is 125 minutes chart. Since ये जो buy signal मिला था मुझे मेरे trading setup में, that is on 15th of October, for the first time मैंने highlight किया था आज का drop से पहले Nifty was 977 and closed at 890 around. So पहली बार एक red cap मिला है। ये मेरा specialized candle है जो प्राइस एक्शन दिखाता है कलर से, क्योंकि ये मेरा पसंद है इसीलिए, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग वी लर्न फ्रॉम पैटर्न। इसीलिए स्टॉक मार्केट में क्लासिकल चार्ट पैटर्न इज वेरी वेरी पॉपुलर। बट बिफोर वी ह्यूमन वी लर्न पैटर्न्स,
we learn to recognize colors. एंड हम लोग का माइंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुका है. क्या मतलब है इसका? इट मीन्स व्हेन यू आर इन अ ट्रैफिक सिग्नल एंड यू आर नॉट अ राउडी पर्सन, दैट मीन्स इफ देयर इज अ रेड सिग्नल यू आर स्टॉपिंग. सो हम लोग का माइंड ये कलर से इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है. व्हेनेवर देयर इज अ रेड, वी नो इट इज अ डेंजर साइन. सो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा रेड मिला है, इसको मैं बोलता हूं रेड कैप. दैट मीन्स बेसिकली एक बुल और बियर का स्ट्रॉन्ग फाइट चल. सो कोई भी अगर एग्रेसिव बुलिश पोजीशन हो, लाइक बुल कॉल स्प्रेड है आपके पास, इट वाज अ गुड टाइम टू टेक सम प्रॉफिट होम. वंस 125 मिनट्स में मैं इंडेक्स देख लिया, आई विल टेक यू टू द ऑप्शन. ऑप्शन में क्या चल रहा है दिखाने के लिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अपना ऑप्शन मास्टर इस्तेमाल करता हूं. अगर आप चाहे तो यू कैन डू सिंपली विद द लाइन चार्ट एज वेल. लाइक एज लॉन्ग एज मार्केट इज बुलिश, you can do only bullish strategies. That can be income strategy like bull put spreads, or it can be aggressive capital gain strategies like bull call spread. So चलिए देखते हैं क्या बता रहा है हम लोग का ऑप्शन मास्टर. I'll once again hide the line chart. I don't need it right now, and I also don't need the RSI X. And I'll switch off the strategy for now and look at the main option meter. Currently जैसा मैंने बोला, लेट्स थोड़ा प्रीवियसली जाते हैं ताकि आप रीडिंग देख पाओ. लाइक जब हम लोग यहां पे थे प्रीवियसली, क्या ट्रेड्स चल रहे थे? बुल कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड. बुल कॉल स्प्रेड एक एग्रेसिव कैपिटल गेन स्ट्रेटेजी है, whereas bull put spread is defensive income strategy. Let me make it faster ताकि आज का रीडिंग में हम लोग पहुंच पाए. आज पहली बार सिग्नल आ गया कि एग्रेसिव स्ट्रेटेजी से निकल जाओ, दैट इज बुल कॉल स्प्रेड. मैं ड्रॉप होने से पहले हाईलाइट किया था अक्रॉस सोशल मीडिया, स्टॉकेज, व्हाट्सएप एंड ऑल्सो इन माई रेनबो ग्रुप. बट जो डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज है और इनकम स्ट्रेटेजी, उनका पोजीशन अभी भी मेंटेन्ड है. बट अभी कोई, मैं बड़ा कर देता हूं मीटर ताकि आप देख पाओ. लेट मी ट्राई टू मेक इट बिगर. यहां पे दिखा रहा है स्टार्ट अ न्यू डायरेक्शनल ट्रेड, जो कि बुल पुट स्प्रेड एंड बुल कॉल स्प्रेड, ये डायरेक्शनल ट्रेड्स होते हैं. सो पूछा जा रहा है कैन वी डू अ न्यू डायरेक्शनल ट्रेड राइट नाउ? क्लियरली बताया जा रहा है आइदर वेट आउट, थोड़ा इंतजार करो, या करो तो वेरी लो क्वांटिटी आप बुलिश साइड डायरेक्शनल ट्रेड करो. क्योंकि प्राइस एक्शन न्यूट्रल हो चुका है, बुल एंड बियर का फाइट चालू हो गया है फॉर कंट्रोल. लेट मी वंस अगेन स्विच ऑफ दिस एंड ब्रिंग द लाइन चार्ट एंड टेक यू टू वीकली. ये निफ्टी का ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई क्लोज है. सो इसके पास जाके थोड़ा करेक्शन होना वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस है. सो बहुत लोग ये रेजिस्टेंस को देखते हुए प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, एंड नेचुरली बुल एंड बियर का फाइट चालू हो चुका है. बट लुकिंग एट जो अभी तक हम लोग देखे, इट इज क्लियर कि इवन इफ फाइट गोइंग ऑन, निफ्टी इज नॉट एट ऑल बियरिश. थोड़ा करेक्शन हो रहा है बट स्टिल इन अ वेरी मच बुलिश फेज, मंथली, वीकली, डेली, even in 125 minutes chart. ये जो हम लोगों को रीडिंग्स मिल रहा है, I'll adjust the chart just a moment. And I'll go to 125 minutes and reduce the size.
ये जो रीडिंग्स आ रहे हैं ऑप्शन का राइट साइड में, ये आ रहा है निफ्टी के ऊपर अप्लाई करने से, बट नाउ मुझे रीडिंग चाहिए डायरेक्टली फ्रॉम द ऑप्शन मार्केट, कि ऑप्शन मार्केट में जो प्रीमियम मूवमेंट होता है, चेंजिंग प्राइस इन प्रीमियम, वो क्या बता रहा है कि ये जो एक्सपायरी आ रहा है ऑन 28 ऑफ अक्टूबर, कौन सा स्ट्रेटेजी इज स्टिल ऑन द हायर चांस ऑफ सक्सेस में। वो करने के लिए मुझे ये स्ट्रेटेजी ऑन करना पड़ता है। आई स्विच ऑन द स्ट्रेटेजी, select the correct expiry, that is 28th of October 2025, choose the correct at the money strike, which is 25,900, and the readings are on the right side. Bull call spread, ये जो कि बुलिश स्ट्रेटेजी है एग्रेसिव, स्टिल वही हायर चांस में है। बुल कॉल लैडर, जो कि एक बुलिश बट रेंजी स्ट्रेटेजी है। बियर पुट स्प्रेड यानी सेल के साइड ट्रेड, नॉट एट ऑल बीइंग रिकमेंडेड फ्रॉम द ऑप्शन मार्केट। बुल पुट स्प्रेड, जो कि इनकम स्ट्रेटेजी है बट बुलिश, अगेन बुलिश की तरफ ध्यान, बट दो स्ट्रेटेजी हाई दिखा रहा है। बियर पुट लैडर यानी बियरिश बट रेंजी स्ट्रेटेजी। इसका मतलब समेशन में ये हुआ, अगर इवन इफ बियरिश कम्स, मतलब फर्दर बियरिश सेल ऑफ कम्स, बहुत ज्यादा बियरिश होने का चांस नहीं होते हुए दिख रहा है। सो ओवरऑल वी कैन अंडरस्टैंड द मार्केट इज सिग्निफिकेंटली बुलिश। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द निफ्टी 500 chart, weekly chart, and look at what is the asset master is suggesting. क्योंकि निफ्टी 500 का जो चार्ट है, इट इज बेटर फॉर स्टॉक्स। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है ब्लू चिप का, टॉप 50 कंपनीज, बट निफ्टी 500 बेटर होता है टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मार्केट ऑफ स्टॉक्स। इट इज बुलिश, 11 factors are bullish out of 12. So overall stock is in the bullish phase. Let's look at the mid cap. I will hide the line chart for now. Okay, before I go to the rainbow setup, let's understand the line chart. Line chart में क्या देखने को मिल रहा है, कैसे आप समझेंगे? Before applying any indicator, you should first do the Dow structure. Up, then a lower break, मतलब bearish side move, then again the bearish side move, upside move, could not break these highs, again a drop, then again a move but could not clear previous swing high, मतलब mid cap को हम लोग more rangish बोल सकते हैं। whereas if I look at Nifty 500 without the rainbow, adjust it, आप लोग क्लियरली समझते हैं इट्स इन अ बुलिश स्ट्रक्चर। मतलब इस सिचुएशन में अगर मुझे स्टॉक्स चूज करना पड़े, आई विल रादर चूज फ्रॉम निफ्टी 500 ग्रुप ऑफ स्टॉक्स देन लुकिंग फॉर मिड कैप स्टॉक्स। नाउ आफ्टर मिड कैप आई विल लुक एट द स्मॉल कैप, सिमिलर सिचुएशन। देखिए, लेट्स डू द डाउ। डाउ इज शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। क्या देखने को मिल रहा है? डाउन मूव, लोअर हाई, देन अ ब्रेक, मतलब बियरिश हुआ, बट बियरिश फॉल्स हो गया। बट फॉल्स के बाद हमें एक बुलिश डाउ चाहिए। बुलिश डाउ स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो, जो कि नहीं है। क्लियरली अगेन हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज समवॉट रेंजिश है स्मॉल कैप। तो चलिए ओवरऑल अब हम लोग देखेंगे कि क्या बताया जा रहा है फ्रॉम द एसेट मास्टर। ओवरऑल बुलिश बट नॉट एज बुलिश एज द निफ्टी 50। देखिए निफ्टी 50 का चार्ट, लेट मी रिमूव द ऑप्शन मास्टर एंड ब्रिंग द एसेट मास्टर।
प्रीवियस जो रेंज था उसका ब्रेकआउट हो गया। बट अगर हम लोग स्मॉल कैप में कंपेयर करेंगे, इट इज नॉट द सिचुएशन। सो इवन इफ स्मॉल कैप इज बुलिश, वो उतना तगड़ा बुलिश नहीं है जितना निफ्टी 50 है और इवन निफ्टी 500 जितना बुलिश है। उतना बुलिश ना इधर मिड कैप है ना तो स्मॉल कैप है। ये मैं हाईलाइट कर चुका हूं बार बार कि इस बार का जो बुलिश मार्केट आ रहा है, ये पूरा नॉट लाइक बिफोर 2024 की हर सेक्टर इज बुलिश, सो मोर स्पेसिफिक सेक्टर इज बुलिश। तो कैसे मैं एनालाइज करता हूं कि विच सेक्टर इज बुलिश? जस्ट अ मोमेंट, I'll change the chart. I'll use the risk master here. I'll use the SIP manager and I will look at my ratios, which gives me very clear picture about sectors. तब क्या होता है, मुझे स्टॉक ढूंढना आसान हो जाता है। जैसे कुछ लोगों को याद होगा, राइट टाइम पे मैंने ऑटो सेक्टर हाईलाइट किया था। ऑटो वर्सेस मैं कंपेयर कर रहा हूं उसको निफ्टी 500 के साथ। बुलिश, नॉट जस्ट बुलिश, जुलाई 2025 से बहुत बुलिश। लेट्स लुक एट कंज्यूमर, बुलिश, बट अगर हम लोग एनर्जी सेगमेंट देखें, इट इज नॉट एट ऑल आउट परफॉर्म। तो आप इस सिचुएशन में अगर जबरदस्ती एनर्जी स्टॉक्स खरीदेंगे, यू शुड बी अवेयर कि आप अंडर परफॉर्म करेंगे ओवरऑल मार्केट। मैं निफ्टी एनर्जी सेक्टर को बेसिकली निफ्टी 500 से डिवाइड कर रहा हूं एंड देख रहा हूं सिचुएशन। फाइनेंशियल्स में आई विल टेक यू टू मोर द पीएसयू बैंक्स, इसीलिए हम लोग बैंक्स में जा पाए। एसबीआई देखिए, कनाडा बैंक, many PSU banks have started doing well because they are in outperforming sector. Whereas if I look at the IT, this is the IT, it is clearly still underperforming the overall market. So अगर मैं स्टॉक ढूंढ रहा हूं, इट इज क्लियर मुझे कहां ढूंढना चाहिए ओवरऑल स्टॉक्स? मेटल, फाइनेंस, कंजम्पशन, नॉट आईटी। लेट्स लुक एट इंफ्रा फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही फ्लैट, बट एज इट इज टर्निंग ग्रीन, हो सकता है इंफ्रा सेगमेंट में सम ऑफ द स्टॉक्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, जो हम लोग का फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा हो सकता है। इफ आई लुक एट द प्राइवेट बैंक, इट इज कमिंग बैक इनटू स्ट्रेंथ। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज नाउ। कैसे ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटीज? सिंपल, अगर आपके पास रेनबो सेटअप है तो इट्स इजी। इफ यू डोंट हैव द सेटअप, हाउ यू डू इट? Go to the private bank segment and look for only largely three things as a basic starter. Which stocks are creating? I'll switch off this and I'll open up the line chart to explain this. Look for stocks which are creating double bottom. Look for stocks which are giving ready to give range breakout. Look for stocks which are giving inverted head and shoulder pattern. अगर आप नहीं जानते head and shoulder pattern, let me draw it. Left shoulder, इसको बोलते हैं head, this and the right shoulder. ये पैटर्न से आपको चालू करना चाहिए फर्स्ट योर स्टॉक ट्रेडिंग जर्नी। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, of course you can join our rainbow journey, but this is the stocks you should look for. अगर नहीं मिल रहा है, then let it go, but definitely आप लोगों को अच्छा opportunities now in the private sector में मिल जाएंगे। So this is the overall situation. So currently what I will go for, I'll go for more banking stocks. पब्लिक सेक्टर बैंक में तो राइड चल ही रहा है। इफ आई लुक एट SBIN, which is State Bank of India, the biggest of the public sector bank, look at beautiful breakout.
क्लियरली हम लोग उस जगह पे पहुंच गए जहां पे आउट परफॉर्मेंस हो रहा है, एंड इट इज वेरी इजी विद द रेनबो सेटअप विथ आवर स्क्रीनर टू फाइंड इट. बट अगर नहीं है, you can use the simple line chart as well. If you look at Canara Bank, since I'm doing stocks, I'll open up the stock master. Canara Bank, it is in a strong bullish phase. अब क्या हो रहा है? Private banks are coming also. So let's look at some of the private banks, say Axis Bank. Going into strength, let's look at via the line chart. A breakout, strong breakout हुआ है. But these stocks will, as a beginner, you should not jump into, because they did not produce our required pattern like inverted head and shoulder, double bottom, or even the range breakout, a box range breakout. So अगर आप इस तरह एनालिसिस करेंगे तो एटलीस्ट राइट सेक्टर में पहुंचेंगे, एंड राइट सेक्टर के अंदर यू माइट फाइंड गुड क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज. बट अगर आप अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर में रहेंगे, देन योर पोर्टफोलियो ओवरऑल विल अंडर परफॉर्म. और सिर्फ आप ही नहीं, मतलब हम लोग खुद के ऊपर कभी कभी दबाव डाल देते हैं. वी एड प्रेशर ऑन आवर सेल्व्स टू परफॉर्म. बट इफ यू लुक एट द म्यूचुअल फंड रिजल्ट्स, जस्ट चेक द बिजनेस लाइन. इवन द फंड मैनेजर्स जिनको आप पे करते हैं फीस, majority of them, at least 70% of them, underperform the market return. You can check live whether I'm telling truth or not just by the Sunday paper. Look at 1 year return of Nifty and 1 year return of the mutual funds, and you will see 70% of them, at least, if not more, are underperforming the equity market. So अगर आप SIP में जाना चाहते हैं कि चलो आई एम नॉट अ गुड स्टॉक फाइंडर और आई डोंट हैव टाइम, rather I'll recommend, rather than going for which mutual fund, just go for Nifty Bees ETF and small cap mid cap में investment. Don't go for specific, क्योंकि उन लोगों का जितना भी innovation रहता है, those innovations are in the name. न्यू फ्रंटियर फंड, न्यू ग्रोथ फंड. सो नाम में जितना भी इनोवेशन है पूरा नाम पे, rather than the परफॉर्मेंस. उससे क्या होगा? ETF का कॉस्ट इज मच लोअर देन द म्यूचुअल फंड का कॉस्ट, तो आप थोड़ा पैसा भी सेव कर पाएंगे. सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम माय साइड. Now I'm open to any questions that you may have regarding Nifty or the overall stock market. I'll be happy to take it. You can post your queries. How to use sector in Mayank ji पूछ रहे हैं. Mayank ji, I think you are a Rainbow member and you are possibly I think so, and you also find great stocks from your not everybody perform the same, but if you are the same Mayank जो मैं सोच रहा हूँ, you really pick up good stocks. So basically ये कैसे करते हैं विदाउट द इंडिकेटर मैं शो कर चुका हूं इन द मनी मैनेजमेंट मॉडल्स पार्ट 2. मतलब बिना इंडिकेटर का कैसे करते हैं. सो कैसे कर सकते हैं हम लोग बिना इंडिकेटर का कोई सिंपली डाउ स्ट्रक्चर कैसे करेंगे. निफ्टी, पीवीटी बैंक, और जब आप कंपैरिजन कर सकें किसके साथ कंपैरिजन करना चाहिए? निफ्टी 500, नॉट निफ्टी 50. CNX 500. Click. It is a bounce back, though we don't have a Dow structure, but Nifty Private Bank clearly has significant bounce back show कर.
ये और आसान हो जाता है विद द हम लोग का जो एसआईपी मैनेजर का क्लाउड है, वेरी इजी टू डू। क्लाउड ग्रीन हो गया मतलब नाउ निफ्टी प्राइवेट बैंक हैज स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग द ओवरऑल निफ्टी 500। सो वंस एक बार हम लोग पहुंच गए कि निफ्टी 500, फिर एज इफ यू आर अ रेनबो मेंबर व्हाट यू विल डू, you will go to trading view pine screener. By the way, Diwali का सेल चल रहा है, I think it is could be still on, 80% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। सो उसमें अब क्या करना होगा, आपको बैंकिंग सेगमेंट चूज करना होगा, रेनबो बैंकिंग एसडी। सो बैंकिंग सेक्टर में हम लोग देख लिए स्टॉक्स। अब क्या करना है, गो टू द इंडिकेटर एंड चूज स्क्रीनर एक्स। और स्क्रीनर एक्स में जस्ट let me put one condition कि which stocks have strength score greater than 70 in the weekly chart। weekly chart में हम लोग ये scores apply करते हैं। scan it clearly, last time था 7, इस time there are 14 banks। so these 14 banks ये पूरे banking group से significantly strong। AU Small, Bank of India, these are public sector। then we have private sector, Federal Bank। So Federal Bank could be strong। So let's look at the Federal Bank। For example, weekly chart क्लियरली देखिए प्राइवेट सेक्टर में स्ट्रेंथ आ रहा है जब हम लोग स्टॉक मास्टर, एसेट मास्टर अप्लाई किए। सो लेट्स गो टू फेडरल बैंक। तो उसमें एक प्लान बनाना पड़ता है। फेडरल बैंक में क्या बोल रहा था मैं, आपके पास अगर बाकी नॉलेज नहीं है तो क्या आपको फोकस करना चाहिए, 3 इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मिल रहा है तो मैं आई एम गोइंग इन, नहीं मिल रहा आई एम नॉट गोइंग इन। सेकेंड क्या, डबल बॉटम, मिल रहा है आई एम गोइंग इन, नहीं मिल रहा आई एम नॉट गोइंग इन। थर्ड, बॉक्स और रेंज ब्रेकआउट। दिस इज अ बॉक्स और रेंज ब्रेकआउट इन फेडरल बैंक, ब्यूटिफुल। जस्ट लुक एट द लाइन चार्ट, सिंपली रेंज का ब्यूटिफुल ब्रेकआउट। लुक एट डबल बॉटम भी है एंड अ ब्रेकआउट। Will the stock go up? Nobody knows. Maybe Trump will suddenly sanction फेडरल बैंक। हम लोग जो अनसर्टन फ्यूचर को सोच नहीं सकते, बट हम लोग अपना रूल फॉलो करके इन्वेस्टिंग करेंगे। सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड गुड क्वालिटी स्टॉक्स विद द रेनबो। We could easily find out, okay, Federal Bank is a stock which has given the breakout. Next, what is my plan? How will I invest? How much will I invest into these stocks? Those are separate questions. So I hope, Mayank ji, I was able to answer your query. फनी कृष्णा जी पूछ रहे हैं, फनी जी, आई डू नॉट ट्रेड स्टॉक्स इन 125 मिनट्स। मेरा संडे स्टॉक स्टॉर्म भी आप देख सकते हैं। I invest in stocks like these Federal banks looking at the weekly chart। क्योंकि स्टॉक्स देखिए, अगर आप 125 मिनट्स में गुड ट्रेडर तो आप कीजिए, क्योंकि कोई भी आपको टाइम फ्रेम रिकमेंड नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली ट्रेडर्स चॉइस होता है। बट इफ यू आर नॉट गुड, प्लीज कम टू द लॉन्ग टर्म चार्ट, because unless you come to the long term charts, आप कभी भी ये बात नहीं कर सकते कि I believe in back testing, because if you do any back testing, you will see stocks are way better and they give awesome run. Like one of the stock we did invest was currently we have exited, Force Motors, right time पे entry and now the exit। So I prefer weekly chart ताकि हम मुझे लंबा रन मिले। The more I do short term trading मैं करता हूं, आ जाइए कॉमोडिटी, चलिए ऑप्शन, बट नॉट स्टॉक्स। स्टॉक्स को टाइम देना पड़ता है। Once you give time to them, they are ready to perform।
मैंने एक स्टॉक में प्रॉफिट लिया, वंस अगेन किसी का सुन के आपको जंप नहीं करना चाहिए, आई कुड बी वेरी मच रॉन्ग बिकॉज नोबॉडी नोज द फ्यूचर। फिनो पेमेंट्स बैंक में मैंने इन्वेस्ट किया था, मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मुझे अच्छा रिटर्न मिल गए। ये रिटर्न को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग पूछते हैं चलो मुझे मल्टी बैगर बताओ, मल्टी बैगर। लेट मी शो यू द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी बैगर। आई हैड इन्वेस्टेड, सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, चलो 275, ठीक है, और 270 मान लेते, और कोई भी मास्टर देख लो, इक्विटी मास्टर, उनका अगर यू कैन मेक 25 to 30% रिटर्न in 1 year consistently, you can be considered very good investor and trader. So अगर मैं 270 में इन्वेस्ट करता हूं, मुझे एक साल में अगर 30% चाहिए, 270 प्लस 30 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 350, करेक्ट? कब इन्वेस्टमेंट है? अबाउट सितंबर, एग्जाम्पल की तरफ से। ना मुझे कितना रिटर्न चाहिए? 350 तक मुझे चाहिए, ओके। नाउ ड्रॉ अ लाइन, कहां तक? 350, ओके, दिस इज द लेवल, और मुझे कब चाहिए? बाय सितंबर। चलो यहां तक, एंड द स्टॉक इज ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग। अगर मैं इसको ईयरली में कन्वर्ट करूं, मेरा जो 11% अराउंड गेन, इट इज अ मल्टी बैगर, 3 हफ्ते में मिला। इसका मतलब क्या है? इट इज, इफ आई मल्टीप्लाई इट इन अ ईयर, इट इज 11% इंटू 17, मैं कंपाउंडिंग नहीं पकड़ रहा हूं, 180% मल्टी बैगर। So multi-bagger, it does not have to be always a stock, it is a concept. So मैं वीकली चार्ट पे फोकस करता हूं फनी सर, आई डू नॉट ट्रेड इन द 125 मिनट्स चार्ट, बट हम लोग का स्ट्रेटेजी है 125 मिनट्स में करने के लिए, जिसका नाम है क्रीम डेला क्रीम, बट वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का चॉइस रहता है। आई विल ऑलवेज रिकमेंड गो फॉर द वीकली चार्ट, बट आई कैन नॉट डिसाइड द टाइम फ्रेम फॉर यू, वो आप ही को डिसाइड करना है। Vijay sir believes Axis Bank, for me inverted head and shoulder is happening. Which time frame sir you did not mention? Let's look at the Axis Bank. ये जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न की बात हो रहा है, क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स आर मोर सक्सेसफुल इन द वीकली चार्ट। हो सकता है कि आप इसको मान रहे हैं एंड देन यू आर कंसिडरिंग इट एज अ डबल हेड, इफ दैट इज ट्रू। अगर आप इनको मान रहे हैं कि ओके दिस इज माय लेफ्ट शोल्डर, this is a double head, and this is my, sorry, this is the double head and this is my right shoulder, then yes, this is a inverted head and shoulder pattern, and as the breakout happens you can go into this stock with the mindset कि लेफ्ट साइड में क्या होता है कि लोग जब स्टॉक ले लेते हैं, they take go into stocks and they go in down say 10-15%, they hold the stock, but the moment it comes into profit even 2%, they book the profit, they cannot hold into profit, इतना देर लॉस तक होल्ड करेंगे बट प्रॉफिट में नहीं। तो क्या होगा, इसका सिचुएशन ये है कि जब भी ये लेवल्स है तो वहां पे एक शेक ऑफ आ जाता है। सो ये लेवल पे आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए देयर वुड बी सम सेलर्स हु आर ईगर टू सेल, तो वो समझ के आपको जाना चाहिए इनटू एक्सिस बैंक। बट अगर मुझे चार्ट स्ट्रक्चर वाइज मुझे फेडरल बैंक अच्छा लग रहा है, but Axis B, if you consider this as a head and shoulder, yes, it is a good as well. Private bank coming into strength, काफी अच्छा रिटर्न आ सकता है इन द प्राइवेट बैंक सेगमेंट।
नुवामा चार्ट से प्रशांत जी पूछ रहे हैं, नुवामा। ओके, चलिए लाइन चार्ट पहले देखेंगे, बाद में देखेंगे विद द रेंज। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट पॉसिबली, दिस इज व्हाट यू मेंट। तो क्या दिख रहा है, देखिए एक डाउ नीचे का ब्रेकडाउन चल रहा था, सडन जंप अप हुआ है जो डाउन ट्रेंड को नलिफाई कर दिया। अब आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट एक डाउ स्ट्रक्चर। बट देखिए सर, ये जो चार्ट है इसमें ना तो डबल बॉटम है, ना तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो एज ए लाइन चार्ट यूजर आई विल प्रेफर दिस वन, मैं मुझे जाने दूंगा, आई लेट इट गो। इट कुड बी बुलिश, यही प्रॉब्लम है स्टॉक में कि देयर आर 1000 स्टॉक्स, कमोडिटी नहीं है कि मैं गोल्ड पकड़ लिया विद द बाई सिग्नल। देयर आर 1000 स्टॉक्स, बहुत में बाई सिग्नल आएंगे। तो कैसे मैं समझूं कि विच वन इज कैन गो अप सिग्निफिकेंट। सो आई विल प्रेफर, मतलब दिस इज टर्निंग बुलिश नो डाउट, बट आई थिंक देयर कुड बी सम बेटर चार्ट्स एज वेल। रेनबो क्या बता रहा है, देखिए हम लोग के यहां पे वीकली चार्ट में स्टॉक का स्ट्रेंथ स्कोर 70 चाहिए होता है, आरएस बुलिश चाहिए, एंड स्पीड स्कोर चाहिए 10। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टॉक कुड बी बैड, बट मुझे मोर रेंजिश स्लो राइजिंग दिख रहा है, नॉट फास्ट राइजिंग। वेर एज इफ आई लुक एट, आप रीडिंग देख लीजिए, फेडरल बैंक जो मैंने हाईलाइट किया, ब्यूटिफुल ब्रेकआउट, लुक एट द रीडिंग्स। When the readings are there, stock go up very very fast. साथ में देखिए साउथ बैंक, बहुत दिनों बाद एक ब्रेकआउट हुआ है साउथ बैंक, ये भी मैंने हाईलाइट किया था बोथ रेनबो ग्रुप में, साथ ही साथ संडे स्टॉक स्टोर। ब्यूटीफुल स्क्वीज का ब्रेकआउट एंड सुपर, बहुत मौका था इसमें बुलिश होने का, इवन इफ यू मिस द फर्स्ट मूव, फिर से मौका था री एंट्री करने का, एंड इट इज गोइंग अप। सो काइंडली लुक फॉर, जो पैटर्न मैं बोल रहा हूं कि लुक फॉर, दिस इज, मैंने डिस्कस नहीं किया स्क्वीज, आई फोकस ऑन 4 to 5 पैटर्न्स, उसके साथ रेनबो चार्ट। सो दिस इज अनदर ऑफ माई गुड बेट। Gold turning bullish, ये it turned bullish. I am watching the GC1. I have done some trades in gold, though it is not exactly related to stocks, since gold discussion में है। Let me use the chart. अब commodity chart apply करना पड़ेगा। गोल्ड मैं अपना रूल फॉलो करके ट्रेड कर रहा हूं। दिस इज कॉमेक्स गोल्ड टर्न बुलिश, सो आई रिमेन बुलिश, बट क्वांटिटी मैनेजमेंट करना पड़ रहा है बिकॉज सुपर बुलिश नहीं। सो मेरा करंटली गोल्ड में बुल ट्रेड्स चल रहे हैं एंड आई स्टिल रिमेन समवॉट पॉजिटिव। ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है 4200 पे। लेट्स सी हाउ गोल्ड डज। एंड क्रूड ऑयल भी कल का कॉमोडिटी में हम लोग हाईलाइट किए थे, इट इज वेरी बुलिश, थोड़ा ज्यादा ही बुलिश हुआ देन आई वाज एक्सपेक्टिंग। सिग्निफिकेंट राइज हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मोर स्टॉप ओवर होगा, बट नोबॉडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर एंड इट हैज गॉन सिग्निफिकेंटली बुलिश। सो क्रूड ऑयल में थोड़ा डेली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स लुक एट द डेली। जो लोग रेनबो इस्तेमाल करते हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इफ यू नो आवर हाउ द मार्केट मूव्स, कहां से क्रूड ऑयल ब्रेकआउट होगा। वेरी वेरी लाइकली क्रूड ऑयल विल राइज, टेस्ट द रेजिस्टेंस एंड एक्चुअल ब्रेकआउट अटेम्प्ट करेगा फ्रॉम दीज जोन। अगर ये जोन से ब्रेकआउट हो रहा है देन क्रूड ऑयल और भी पॉजिटिव हो। तो आने वाले दिन में फर्दर मुझे आइडिया मिलेगा व्हाट इज गोइंग ऑन विद द क्रूड ऑयल। फर्दर बुलिश रहना चाहिए या स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। This is significantly bullish, more bullish than I had actually anticipated.
Since the mid caps and small cap, can we assume the broad market is not in a bull run? ये मैं हाईलाइट कर चुका था कि हर बुल मार्केट इज नॉट सेम. लाइक 2024 सितंबर में से जो रमनीत सर जो चल रहा था, इट वाज कॉल्ड आउटराइट बुल मार्केट. लाइक एनी सेक्टर, उसमें क्या होता है, एक्चुअली मुझे बियर मार्केट थोड़ा ज्यादा पसंद है, बिकॉज बुल मार्केट में क्या होता है, आउटराइट बुल मार्केट में एवरी टाइम माय फ्रेंड्स कम ऑन एंड दे से दे आर गोइंग टू लीव देयर जॉब्स and going to become traders, they because वो लोग कुछ भी फेंक देते हैं and it becomes positive and they think they become super trader. 1 September के बाद suddenly they are back to their jobs again. नहीं जॉब छोड़ेंगे नहीं, आप अभी उतना ट्रेड नहीं कर रहे, यही वो बोलते हैं. सो करंटली जो सिचुएशन है, दैट इज नॉट फुल्ली बुल, बट डेफिनेटली सेक्टरल जो हम लोग देखे, जैसे प्राइवेट बैंक, PSU बैंक, ऑटो में काफी अच्छा रन हुआ. तो आई विल से डोंट थिंक अबाउट स्मॉल कैप मिड कैप, थिंक अबाउट मोर सेक्टर स्पेसिफिक. सेक्टर स्पेसिफिक के बाद थिंक अबाउट मोर स्टॉक स्पेसिफिक. कैसे करेंगे, पहले देखेंगे विच सेक्टर आउट परफॉर्मिंग, जैसा हम लोग देखें. उसके बाद क्या देखेंगे, से लेट्स लुक एट स्टेप बाय स्टेप विद द लाइन चार्ट और से फॉर विद द क्लाउड फॉर एग्जांपल. सो हम लोग क्या देखें, CNX और CNX नहीं, निफ्टी प्राइवेट बैंक बाय CNX 500. इंटर वीकली चार्ट में जाएंगे बिकॉज दैट इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट. देखिए टर्न अराउंड हो रहा है. अब क्या देखें हम लोग, अब देखिए इंडिविजुअल स्टॉक्स. फेडरल बैंक देखें, फेडरल BNK डिवाइडेड बाय, अब आ जाइए निफ्टी प्राइवेट बैंक. इंटर आउट परफॉर्मेंस चालू. मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप आउट परफॉर्मेंस के ऊपर नजर दे. मतलब बहुत हाई लेवल नॉलेज से पहले, इफ यू गो थ्रू दिस सिंपल बेसिक्स, you are going to be much better performer into the investments. स्टॉक को थोड़ा समय दीजिए. कुछ लोग जैसे इवन इन द रेनबो वेर डाउटिंग VSSL. क्यों डाउट कर रहे थे, बिकॉज उनको थोड़ा टाइम लगा. मैंने लाइन चार्ट ऑन कर दिया, VSSL थोड़ा टाइम ले रहा था आउट परफॉर्मेंस के लिए. सो इसीलिए लोग इम्पेशेंट हो जाते. आप थोड़ा समय दीजिए स्टॉक को. अगर आप आउट परफॉर्मेंस में, दे आर गोइंग टू डू वेरी वेल ओवर टाइम. बट अगर आप बहुत जल्दी बाई एंड सेल कर रहे, दो लोग बड़े हो रहे, योर ब्रोकर इज बिकमिंग रिच एंड द गवर्नमेंट इज बिकमिंग रिच एंड यू आर नॉट. सो स्टॉक में ये क्या होता है, साइकोलॉजिकली ये एक पंचिंग मशीन. और क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे भी एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी. सपोज आप लार्जली काफी अच्छा इनकम बनाना चाहते या रिच होना चाहते, तो यू आर करेंटली सपोज रिच लेवल 1 एंड आप पहुंचना चाहते हो रिच लेवल 2. एंड आपको साइकोलॉजिकली आप सोचते हो, ओके आई हैव टू डू समथिंग टू गो टू फ्रॉम रिच लेवल 1 टू रिच लेवल 2. बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो. जो भी सिटी में आप हो, सडनली सोचिए एक अर्थक्वेक आ गया and all the houses in the city crashed except yours. You are already the super rich in the city without taking any action. That means कभी कभी ना एक्शन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. So I will sir recommend, give time to the stocks you are finding. If you have a good setup like we have the Rainbow, very well, you can remain in the right side. If not, have faith in the Dow structure. Dow structure and the market आपको सही गाइड करेंगे. देखिए VSSL एक बार भी डाउ का एग्जिट नहीं दिया, एक बार भी नहीं. You can remain in the right side of the market.
So have patience when you are investing into stocks. Is your video recording? Yes, this recording will be available in my YouTube. थोड़ा टाइम लगेंगे उसको अपडेट करने के लिए. Sir, for SD Rainbow course, how much capital is needed? Let's put it this way. सेबी क्या बता रहा है? 93% लोग 8% नहीं बना पाते. प्लस एवरेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर डू वर्स देन द म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस. दोनों सेबी में चेक कर लीजिए, इट इज अवेलेबल. मतलब ओनली 7% लोग 8% से ज्यादा कमाते हैं. सो मैं मानूंगा अगर हम लोग अपना पोर्टफोलियो एक अच्छा रेट 25-30 डिपेंडिंग ऑन कहां पे जा रहा है, कमोडिटी है तो हायर, ऑप्शन में जा रहा है मैं मानूंगा 25 to 35 अगर बना पा रहे, सुपर. एंड दैट कैन बी डन विथ आवर इनकम स्ट्रेटेजी. सो आपके पास जो कैपिटल है उसको थोड़ा डालिए और देखिए कि अगर वो 30% या 35% में ग्रो करता है फॉर से 10 years, हाउ इट बिकम्स. अब सब लोग अगर मैं पूछूं आप 3 करोड़ से चालू करें, 3 करोड़, and in 15 years you are at 500 crore. Are you a super profitable trader? You all will say yes. क्या ग्रोथ रेट है? 40%. ट्रेडिंग में कोई मेगा हिट का जरूरत नहीं. What we need is regular performance. Second is हम लोग ट्रेडर नहीं बन पाएंगे सक्सेसफुल unless we are recovering the cost. Like trading view is a cost. हर बिजनेस का एक कॉस्ट होता है. इसमें इसको समझना इतना डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट इसलिए है बिकॉज अदर बिजनेस लाइक ब्रिटानिया अगर पूछे मैंने तो मशीनरी खरीदा, अब व्हीट भी खरीदना पड़ेगा, शुगर भी, हाँ नहीं तो बिस्किट्स नहीं आ रहे. बट इन दिस बिजनेस एवरीथिंग इज कैपिटल लाइक मनी, बट ऑल मनी नॉट सेम. सम मनी इज योर कैपिटल and some money is your fixed cost. Like if you take a course, it can be a fixed cost. जो knowledge based course, say other course, master class. Whereas if you take trading view rainbow, it is a working capital. तो आपका कैपिटल देखते हुए सपोज यू विल अर्न 25-30%, आपका कॉस्ट रिकवर हो रहा है कि नहीं. आई थिंक ये बिजनेस में जितना कैपिटल आप लाओ उतना ही बेहतर है. बट कोई लिमिटेशन नहीं है. इफ यू हैव अ गुड कैपिटल, आई थिंक if you bring down at least 5-7 lakhs, it is a very good to start with. We can sit down and discuss how you should be invested. We have counseling session कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है. जैसे अगर मैं कमाता हूं बट हायाबुसा मेरा कोई यूजेज का नहीं, आई कांट ड्राइव मोटर बाइक्स. So even if I have the money to buy Hayabusa, I'll not buy Hayabusa. But you may buy Hayabusa. आपका ड्रीम क्या है? ट्रेडिंग में और एक चीज पे गलत करते हैं लोग कि व्हाई दिस इज स्पेशल. ये बहुत ही स्पेशल प्रोफेशन है और लोग सोचते हैं कि इट इज जस्ट अ मनी मेकिंग मशीन. नो, इट इज रॉन्ग. इट कैन सॉल्व अ वेरी इंपॉर्टेंट पजल. क्या है वो पजल? मनी, एनर्जी एंड टाइम. Very few professions which can solve this puzzle. You can be a businessman, but you can never have the time and the energy. Whereas tomorrow मैं घर पे ही बैठा रहूंगा, 2-3 मारूंगा यहाँ पे टिक या नहीं मारूंगा, I have the energy and time. That's the package. Money, energy and time. आप ऐसा भी सोचो कि you are in a job. मैं रिसेंट सर्वे किया हूं दोस्तों का, स्टूडेंट्स का. What kind of growth they give you? 10%, 5%, 11%, ये रेंज था. If trading can give you 20%, से और एक जॉब बोल रहा है मैं 20% ग्रोथ दूंगा, which one will you choose? लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, चाहिए एक बार में पैसा. बिकॉज अगर आपके पास 5 लाख है
20% is an excellent return, but it's just a 1 lakh rupees. So आप impatient हो जाते. So have the right mindset, Ashish ji, and then decide, looking at your situation, what you should do. How to exit from a stock? First of all, Gokul sir, you should not exit from a stock just because it has gone up or it has gone down. आपका ओरिजिनल रीजन क्या था इन्वेस्टमेंट का? अगर वो थीसिस प्रिपेयर करना है, सपोज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड, सिंपल, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनीथिंग एल्स. हाउ टू एग्जिट मिनिमम, मैं संडे स्टॉक स्टोर में एग्जिट डिस्कस कर चुका हूं मेनी. लेट्स लुक एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सीडीएसएल भी देख लेंगे या एनीथिंग. डाउ स्ट्रक्चर वीकली, डाउ स्ट्रक्चर यहां पे एग्जिट था. सिर्फ एक यहां पे नहीं, एमसीएक्स, कोई भी स्टॉक, एनी स्टॉक यू टेक, यहां पे एग्जिट, एंट्री, फिर से डाउ स्ट्रक्चर. डाउ स्ट्रक्चर पे भरोसा कीजिए. कौन बताएगा आपको एंट्री एग्जिट? मार्केट. मार्केट विल टेल यू अबाउट एंट्री एग्जिट. आपको राइट क्वेश्चन पूछना है मार्केट, देन इट विल टेल यू अबाउट द राइट एंट्री एंड एग्जिट. जब तक आप गलत क्वेश्चन पूछेंगे, देन इट विल गिव यू रॉन्ग आंसर्स. सो अगर अलग कुछ नहीं आता आपको, लेट्स ट्राई द डाउ स्ट्रक्चर. फेडरल बैंक कब निकलेंगे? डाउ स्ट्रक्चर. साउथ बैंक कब निकलेंगे? डाउ स्ट्रक्चर. रेनबो ऑब्वियसली एग्जिट देगा, लाइक इट हैज गिवन फॉर मेनी एग्जिट इट हैज गिवन. बट अगर आपके पास ये सेटअप नहीं, एटलीस्ट डाउ स्ट्रक्चर है. हैव फेथ इन द डाउ स्ट्रक्चर. It will give you quite a good exit. और ज्यादा टाइम बचा नहीं, एक ही दो स्टॉक देख पा रहे हैं. एमटार टेक ले रहे हैं और एवीएल ले रहे हैं. पंकज जी का एवीएल, आदित्य विजन लिमिटेड. आप बोल रहे हैं डेली चार्ट. डेली चार्ट में सर देखिए, डाउ तो नीचे है, आपको तो और किसी का जरूरत नहीं है. सिंपल, डाउ क्या था? ऊपर मूव हुआ. बट डू वी हैव अ बुलिश डाउ? नो, कोई बुलिश डाउ नहीं. लेट्स लुक एट स्टॉक मास्टर. करेंटली हम लोगों का कोई भी एंट्री नहीं. आप अगर होल्ड कर रहे हैं, बी केयरफुल इफ इट स्टार्ट्स ब्रेक डाउन 530. अगर नीचे का डाउ स्ट्रक्चर दे रहा है, बी केयरफुल विद द एवीएल. लेट्स लुक एट अनदर वन, एमटार टेक. सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट लेवल पे रीच हो गया. दिस इज आवर माउंटेन टॉप. तो यहां पे मैं प्रॉफिट लेना पसंद करूंगा, बिकॉज नाउ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना आसान नहीं होता. इट इज वेरी टफ रेजिस्टेंस टू ब्रेक. और सिर्फ इंडिया ही नहीं, हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट. ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. करेक्शन मिला, मैंने एग्जिट किया पार्शियली, and then again I have gone in. Google, Tesla, I remain investor in Tesla. Beautiful opportunities आते रहते हैं. If it gives an exit again, I will exit. So exit कैसे करना है? If you don't have anything else, have faith in the Dow structure. That's all friends. Thank you so much for attending. I hope आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा. लास्ट एक आया अमोल जी से, दैट इज टाटा इन्वेस्ट. दिस स्टॉक डिड नॉट वर्क आउट जैसा मैंने प्लान किया था. मुझे एग्जिट करना पड़ा. एट वन पॉइंट आई वाज अप 25%. बट एक बार कोई स्टॉक अच्छा गेन दे देता है, देन सर्टेन लेवल के नीचे मैं नहीं लूंगा. लाइक इट ड्रॉप्ड अनदर 10%, 15% आ गया मेरा रिटर्न. आई एग्जिटेड दिस स्टॉक. बट मेरा काफी फेथ था. बट एज आई सेड, आई डोंट नो द फ्यूचर. अनफॉर्चुनेटली ये जो आई डोंट नो द फ्यूचर, आई डोंट नो, ये पोर्शन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते. आप वॉरेन बफे का सुन लीजिए, वो बोलेंगे आई डोंट नो.
बट ये जो हम लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वहां पे ये आई डोंट नो वर्ड इज नॉट एक्सेप्टेड। तो ये हम लोगों के ब्रेन में रजिस्टर हो चुका है कि आपको नॉलेज नो करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो ग्रुप में हूं कि आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। सो एट सर्टेन पॉइंट आई हैड टू एग्जिट दिस स्टॉक। पहले 50% एग्जिट किया था, उसके बाद फुल एग्जिट करना पड़ा। ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्टॉक से, उससे काफी अंडर परफॉर्म किया। आई वाज एक्सपेक्टिंग मच बिगर गेन। काम हुआ नहीं तो मैं निकल जाऊं। मैं होप के बेसिस पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करता। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल द बेस्ट टू यू फ्रॉम माय साइड। करण जी आप पूछ रहे हैं कॉपर का व्यू। कॉपर का व्यू yesterday I have shared. Kindly look at the commodity market video. Tomorrow I'll try to do another commodity market video and you can look at that video in the copper. That's all. Thank you so much. Have a good night. All the best to you and best wishes towards your trading and investing.